हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर 6 एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को। ओके, सो लेट्स बिगिन विद एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। यू कैन very easily see the structural similarities and variations in the external morphology of the larger living organism, both plants and animals. So basically this is the PPT representation, PowerPoint representation, and this PPT based over NCERT language, NCERT literature. तो टोटल ये NCERT लिटरेचर से बनाई गई है। हाँ, some diagrams have been added in between to explain the topic more clearly. डायग्राम्स कुछ इसमें आपको शेयर किए हैं मैंने, जिससे आप आसानी से इस टॉपिक को और अच्छी तरह से समझें। तो हम लोग देखते हैं कैसा रहता है हम लोग का ये एक्सपीरियंस। यू कैन वेरी इजली सी द structural similarities and variations in the external morphology of larger living organisms, both plant and animals. तो आपको लार्जर एनिमल्स में, लार्जर प्लांट्स में, एनिमल्स में, डिफरेंट एनिमल्स या प्लांट्स में आपको स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज़ भी मिलेंगी, वेरिएशन भी मिलेगा इन द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, आउटर अपीयरेंस में, फिजिकल अपीयरेंस में। सिमिलरली इफ़ वी वर टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर, तो आउटर फिजिकल अपीयरेंस में आपको ये डिफरेंस मिल ही रहा, साथ के साथ इंटरनल स्ट्रक्चर one also finds several similarities as well as differences. So in the internal structure also you can also find the several similarities as well as some differences. This chapter introduces you to the internal structure. In this chapter we are going to discuss the internal structure and functional organization of higher plant and functional organization of higher plants. Okay. Study of internal structure of plants is called anatomy. Study of internal structure of plant is called anatomy. Plants have cells as the basic unit. Cells are organized into tissue. Plants have cells as the basic unit. So all plants are made up of cells. Cells are the basic unit of functional and structural unit of organism. So plants also have cell as the basic unit. Cells are organized into tissue. So those cells which have similar origin and performing the similar function, those cells, group of those cells are called as tissue. So tissue is a group of cells having common origin and performing same function, and in turn the tissues are organized into organ, and tissues, group of tissues performing a specific function, that group of tissue called as organ. So cell is the basic unit, and aggregation of cell having common origin or performing the same function called as tissue. Tissues aggregation performing a specific function called as organ. Move to the next slide. Different organs in a plant show differences in their internal structure. So organs show difference in their internal structure. Within angiosperm, the monocots and dicots are also seen to be anatomically different. In angiosperms are flower bearing plants, flowering plants. In angiosperms, angio means covered and sperms means seeds. Gymno means naked and sperms means seed. So those plants which bear naked seeds categorized as gymnosperms, and those plants in which the seeds are enclosed in the fruit, those plants are called as angiosperms. Within angiosperms, the monocots and dicots are also seen to be anatomically different. एंजियोस्पर्म में भी आप देखेंगे कि डाइकॉट और मोनोकॉट की इंटरनल
एनेटमी जो है, इंटरनल स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट है. इंटरनल स्ट्रक्चर आल्सो शो एडेप्टेशन टू डाइवर्स इन्वायरमेंट्स. और ये इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको क्या देखने को मिल सकता है, आपको एडेप्टेशंस, अनुकूलन देखने को मिल सकते हैं. जिस हैबिटेट में प्लांट है उसके हिसाब से या इन्वायरमेंट के हिसाब से आपको एडेप्टेशन देखने को मिल सकते हैं. ठीक है जी. सो इंटरनल स्ट्रक्चर आल्सो शो एडेप्टेशन टू डाइवर्स इन्वायरमेंट्स. नाउ आफ्टर द introduction of cells, now we move to the tissues. A tissue is a group of cell. Tissue is a group of cell having common origin and usually performing a common function. Plant is made up of different kind of tissue. In plants there are different kind of tissues. Tissues are classified into two main groups, namely meristematic tissue and permanent tissue, based on whether the cells being formed are capable of dividing or not. So those tissues which are formed of cells that are capable of dividing, those tissues are called as meristematic tissue, and permanent tissues are those in which the cell division ability is lost. Now these tissues which lost their ability to divide, those tissues are categorized as, classified as permanent tissue. So on the basis of whether they can divide or not, tissues are classified into two, meristematic tissue and permanent tissue. Meristematic tissues growth in plants is largely restricted to specialized regions of active cell division. So growth in plant में जो आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है वो ड्यू टू सेल डिवीजन. अगर हम लोग ग्रोथ को क्लासीफाई करें, ग्रोथ को डिफाइन करें तो ग्रोथ कह सकते हैं permanent increase either in number or permanent increase irreversible increase either in number or in protoplasm. That is called as growth. So irreversible increase in number, that is also considered as a growth, and irreversible increase in protoplasm. So either the number get increased or the mass get increased, that is called as growth. In multicellular organisms, in plants or animals, in higher plants or animals, the main phenomenon that are responsible for the growth of an organism, that is the cell division. Growth in plants is largely restricted to specialized regions of active cell division. So there are certain regions or at which actively cells are actively dividing, and these cell division is responsible for the, these cell divisions are responsible for the growth of a plant. So growth in plants is largely restricted to specialized regions of active cell division called meristems. Meristems, this word is derived from meristos, from Greek word, and the meaning of meristos is divided. Meristematic tissue is a simple tissue composed of similar cells which can divide and form new cells. So meristematic tissue is composed of a, meristematic tissue is a type of simple tissue on the basis of type of cells present in it. Tissue is of two types, simple tissue or complex tissue. In simple tissue, the cells that comprises tissue are of similar type, same type, whereas the complex tissue contains different type of cells. So meristematic tissue is a special tissue composed of similar cells. Meristematic tissue वो टिश्यू है जिसमें एक ही तरह की cells हैं which can divide, जो divide हो सकती हैं and form new cells और नए cells बनाएंगी. Plants have different kinds of meristem और plants में आपको अलग अलग तरह के meristem देखने को मिल सकते हैं. Depending upon their origin and depending upon their location, we can divide the meristem into different categories. Depending upon their origin, meristems are of two types, primary meristem and secondary meristem. So on the basis of origin, meristematic cells or tissues are of two types, primary meristem and secondary meristem. Primary meristems are those meristems which are derived directly from the meristem of the embryo. Primary meristem
is that type of meristematic cells or tissue which derive directly from the meristems of the embryo. Okay. Depending upon their location, primary meristems are of three types, and according to their location, primary meristems are of three types: apical meristem, intercalary meristem, and lateral meristem. The meristems which occur at the tip of roots and shoots are produce primary tissues are called apical meristem. Those meristems which occur at the tip of root, either present on the tip of root or on shoot, and produces primary tissues are called apical meristem. Root apical meristems occupy the tip of a root, while the shoot apical meristem occupies the distance-most region of the stem axis. During the formation of leaves and elongation of stem. During the formation of leaves, the leaves originate from the node. Node is that portion of stem from where leaf arises, and the portion between two nodes, that is called as internode. So during the formation of leaves, the elongation of stem, some cells left behind from shoot apical meristem. So shoot rises in height due to the actively cell division at the shoot apical meristem. Shoot apical meristem present at the tip of the stem axis, and here cells are dividing actively. So slowly but surely this axis goes on increasing in size. This goes on increase in size and causes the elongation of stem. During the elongation of stem and formation of leaves, some cells left behind from shoot apical meristem. Some cells from the shoot apical meristem left behind. तो ये हमारा शूट तने की जो लंबाई बढ़ रही है वो शूट अपाइकल मेरिस्टेम के डिवीजन से बढ़ रही है. शूट अपाइकल मेरिस्टेम यहाँ पे जो उसके शीर्ष पे शूट के सेल्स हैं, मेरिस्मेटिक सेल्स हैं, उनमें एक्टिवली सेल डिवीजन हो रहा है और उसकी वजह से धीरे धीरे इसकी ग्रोथ हो रही है, लंबाई बढ़ रही है, डेफिनेटली बढ़ रही है. और इस प्रोसेस के दौरान कुछ सेल्स जो हैं वो पीछे रह जाती हैं, मेरिस्मेटिक सेल्स. शूट अपाइकल मेरिस्टेम में से कुछ सेल मेरिस्मेटिक सेल्स पीछे रह जाती हैं और वही बनाती है हमारी एक्सिलरी बड. Such buds are present in the axils of leaves and are capable of forming a branch or flower. तो आप देखेंगे कि इन द एक्सिल ऑफ लीफ ये इस तरह की बड प्रेजेंट है जो बाद में क्या बना देती है, केपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ ब्रांच बना देगी स्टेम की या फ्लावर बना देगी. डेरिवेटिव ऑफ अपाइकल मेरिस्टेम प्रोड्यूसेस द प्राइमरी प्लांट बॉडी. और ये जो अपाइकल मेरिस्टेम है शूट और रूट के, ये अपाइकल मेरिस्टेम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनके अपाइकल मेरिस्टेम में डिवीजन से जो ग्रोथ हो रही है वो प्राइमरी ग्रोथ कहलाती है. अपाइकल मेरिस्टेम या प्राइमरी मेरिस्टेम के डिवीजन की वजह से जो प्लांट में वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है, वो प्राइमरी ग्रोथ प्राथमिक वृद्धि कहलाती है. और इसके डेरिवेटिव से जो इसके डिवीजन से जो पार्ट प्लांट के बन रहे हैं वो प्राइमरी प्लांट बॉडी कहलाते हैं, प्राइमरी प्लांट बॉडी. ओके जी, दो बातें आपने यहाँ पे समझी. चलिए आगे चलें. द मेरिस्टेम्स विच अकर बिटवीन मैच्योर सेल्स, मैच्योर टिश्यू इज कॉल्ड इंटरकैलरी मेरिस्टेम. और वो मेरिस्टेम जो मैच्योर टिश्यूज़ के बीच में आपको मिलता है उसको हम लोग इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं. दे अकर इन ग्रासेस, ये आपको इंटरकैलरी मेरिस्टेम ग्रासेस में मिल रहा है मेनली. एंड रीजनरेट पार्ट्स रिमूव बाय द ग्रेजिंग हर्बीवोर. और जो शाकाहारी हमारे जानवर हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, वो जो घास को चर जाते हैं, घास को खा जाएंगे और घास फिर से उगाती है, वो हमारे इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से उगाती है. बोथ अपाइकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स आर प्राइमरी मेरिस्टेम.
ये अपाइकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम एग्जाम्पल किसके हैं? प्राइमरी मेरिस्टेम के, बिकॉज दे अपीयर अर्ली इन लाइफ ऑफ अ प्लांट एंड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ अ प्राइमरी प्लांट बॉडी। क्यों उसको हम प्राइमरी मेरिस्टेम बोल रहे हैं? क्योंकि वो हमारा जो प्राइमरी एम्ब्रॉयनल एक्सिस था उसमें भी वो थे। एम्ब्रॉयनल एक्सिस जब आप सीड पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे ग्रोइंग एम्ब्रायो में यहाँ प्ल्यूम्यूल, यहाँ रेडिकल, ये हमारे कॉटिलीडन। अगर ये डाइकॉट का है तो डाइकॉट 2, और अगर मोनोकॉट का है तो 1। और ये एम्ब्रॉयनल एक्सिस ये होता है सीड में। जो एम्ब्रायो ग्रो कर रहा है वो डोरमेंट हो जाता है और ये सीड कवर बन जाएगा, सीड बन जाएगा। सीड में आपको मिल रहा है एम्ब्रॉयनल एक्सिस इज दैट कॉटिलीडन। तो ये क्योंकि प्राइमरी हम इनको मेरिस्टेम बोलते हैं क्योंकि ये एम्ब्रॉयनल एक्सिस में भी होते हैं, ये शुरू से हैं, उसकी जीवन की शुरुआत से। तो इन लोग को हम प्राइमरी मेरिस्टेम बोलते हैं बिकॉज दे अपीयर अर्ली इन लाइफ ऑफ अ प्लांट एंड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ अ प्राइमरी प्लांट बॉडी। द मेरिस्टेम दैट अकर्स इन द मैच्योर रीजन्स ऑफ रूट एंड शूट of many plants, particularly those that produce woody axis and appear later than primary meristem is called the secondary meristem or later meristem। और वो मेरिस्टेम जो लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ प्लांट अपीयर हो रहा है और आपको मिल कहाँ रहा है? इन द मैच्योर रीजन ऑफ रूट्स एंड शूट्स ऑफ मैनी प्लांट, पर्टिकुलरली दोज दैट प्रोड्यूस वुडी एक्सिस। और उन प्लांट्स में जिनमें आपके मोटे मोटे तने, काष्ठी तने जिनमें वुड बहुत है मिल रही है, दे प्रोड्यूस वुडी एक्सिस एंड अपीयर लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टेम। तो वो वुडी एक्सिस खूब वुड वाला तना बना देगा, खूब लकड़ी वाला तना बना देगा सेकेंडरी ग्रोथ होने की वजह से, दैट प्रोड्यूस वुडी एक्सिस एंड अपीयर लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टेम। और प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद अपीयर हो रहा है, इस कॉल्ड सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेम, और उसको हम लोग सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेम बोलेंगे। that produce woody axis and appear later than primary meristem। प्राइमरी मेरिस्टेम के प्राइमरी मेरिस्टेम तो शुरू से था, ये बाद में अपीयर हुआ। दिस इज दैट टाइप ऑफ मेरिस्मेटिक सेल्स आर कॉल्ड, मेरिस्मेटिक टिश्यूज आर कॉल्ड सेकेंडरी मेरिस्टेम और लेटर मेरिस्टेम। ओके, देयर आर सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम्स। ये जो हमारे सेकेंडरी मेरिस्टेम्स हैं सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम्स, सिलेंडर साइड पे है। सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम है, अपाइकल मेरिस्टेम नहीं है। फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्ड कैम्बियम आर एग्जांपल्स ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। तो ये हमारे फेसिकुलर वेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम क्या है? जो वेस्कुलर बंडल के बीच में होते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो आपको मिल रहा है, जब आप डाइकॉट स्टेम की एनाटॉमी देखेंगे तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में आपको कैम्बियम मिलेगा, पैच मिलेगा, उसको हम लोग फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम कहेंगे। और दो वेस्कुलर बंडल के बीच का ये जो मेडुलरी रेज है, ये जब मेरिस्मेटिक सेल्स में बदल जाएंगी तो ये वाला हमारा इंट्राफेसिकुलर हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटरफेसिकुलर, और ये था इंटराफेसिकुलर। ये वाला था, इसको आप फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम या इंट्राफेसिकुलर भी कह सकते हैं, इंट्रा, और ये था इंटर, ये वाला। ठीक है जी, ये आपका प्राइमरी ओरिजिन का है, प्राइमरी ओरिजिन, और ये हमारे सेकेंडरी ओरिजिन के होते हैं। तो फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्ड कैम्बियम आर एग्जांपल्स ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, interfascicular cambium and cork cambium are examples of lateral meristem। They are responsible for producing the secondary tissue, और ये सेकेंडरी टिश्यू बनाते हैं। जब इनमें डिवीजन होगा तो जो टिश्यू बनेंगे वो प्राइमरी प्लांट बॉडी ना कहला के सेकेंडरी टिश्यू कहलाएगी। फॉलोइंग डिविजन्स ऑफ सेल्स इन बोथ प्राइमरी एज वेल एज द सेकेंडरी मेरिस्टेम, डिवीजन ऑफ सेल्स इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम, द न्यूली फॉर्म्ड सेल्स become structurally and functionally specialized and lose the ability to divide। Such cells are termed as mature cells or permanent cells and constitute the permanent tissue। तो प्राइमरी मेरिस्टेम या सेकेंडरी मेरिस्टेम के डिवीजन से जो सेल बन रही है वो सेल अगर अपना डिवीजन करने की क्षमता को खो देती है तब हम उसको परमानेंट सेल्स या मेच्योर सेल्स या परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी
स्पेसिफिक रीजन ऑफ द अपाइकल मेरिस्टेम प्रोड्यूसेस डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वेस्कुलर टिश्यू। जब ग्रोथ हो रही है और प्राइमरी प्लांट बॉडी बन रही है तो स्पेसिफिक रीजन पे जो आपके एपिकल मेरिस्टेम के जो प्रोडक्ट बना स्पेसिफिक रीजन पे, जैसे जो बाहर की तरफ है वो डर्मल टिश्यू बना देगा, जो सिलेंडर बीच में है वो वेस्कुलर टिश्यू बना देगा, और जो हमारे बाहर वाले एपिडर्मल और वेस्कुलर टिश्यू के बीच वाला जो पोर्शन है उस पोर्शन की सेल्स या टिश्यू क्या बना देंगी, ग्राउंड टिश्यू। तो डिपेंड करता है कि ये सेल्स का लोकेशन कहाँ पे है। जो सेल्स मेरिस्मेटिक सेल्स के डिवीजन के बाद बनी है और परमानेंट सेल में कन्वर्ट हुई हैं, उनकी लोकेशन के हिसाब से वो फर्दर मॉडिफाई हो जाएगी टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे जो बाहर की तरफ है सेल्स या टिश्यू वो एपिडर्मल टिश्यू बना रहे हैं, जो बिल्कुल सेंटर में कोर में वेस्कुलर टिश्यू बनाएंगे, और जो एपिडर्मल टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू के बीच का लेयर है वो बना देगा हमारा क्या, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो ये बाहर वाला जिसको डर्मेटोजन लिखा है आपकी बुक के डायग्राम में, डर्मेटोजन, और ये वाला वेस्कुलर सिलेंडर। तो ये देख लीजिए आप लोग का बुक का डायग्राम, चलते हैं ये देखिए। तो ये है हमारा प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म ने क्या बना दिया, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ये सेंट्रल सिलेंडर ये क्या बना देगा, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ये कॉर्टेक्स एरिया क्या बना देगा, कॉर्टेक्स एरिया हमारा ग्राउंड टिश्यू बना देगा। ठीक है जी। प्रोटोडर्म से डिराइव्ड हो रहा है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सेंट्रल सिलेंडर से वेस्कुलर टिश्यू, और कॉर्टेक्स से ये हमारा ग्राउंड टिश्यू। ओके, चलिए तो डिपेंड करता है लोकेशन कहाँ पे। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी स्पेसिफिक रीजन, लोकेशन के हिसाब से स्पेसिफिक रीजन ऑफ अपाइकल मेरिस्टेम produce dermal tissue, ground tissue and vascular tissue. Other regions matures into epidermis. Outer region matures into epidermis. Middle region into the ground tissue such as cortex, and the innermost develops into the vascular tissue. परमानेंट टिश्यूज पे आ जाइए। अब हम लोग टिश्यूज की बात कर लें, परमानेंट और कॉम्प्लेक्स की, सिंपल और कॉम्प्लेक्स की। परमानेंट टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू की बात हो गई। मेरिस्मेटिक टिश्यू के टाइप पढ़ लिए आपने। मेरिस्मेटिक टिश्यू के बाद अब हम लोग आ गए परमानेंट टिश्यू पे। द सेल्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर। अब ये जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं उनकी सेल्स डिवाइड नहीं करती। परमानेंट टिश्यूज हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड सिंपल टिश्यू। और वो परमानेंट टिश्यू जिनमें सभी सेल्स जो हैं, सेल्स all cells are of similar kind, those type of permanent tissues are classified as simple tissue, whereas permanent tissue having many different types of cell, जिसमें अलग अलग टाइप की सेल्स हैं, उनको हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोल रहे हैं। सिंपल टिश्यू, सिंपल टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। सिंपल टिश्यू बना होता है केवल एक तरह की सेल्स का। द वेरियस सिंपल टिश्यू इन प्लांट्स आर पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और जो अलग अलग तरह के सिंपल टिश्यू आप लोग को मिल रहे हैं प्लांट में, उनको हम लोग कहते हैं पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा पे आइए, समझ में आ गई बात। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स है। टिश्यू कैन बी डिवाइडेड इनटू मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू जिनमें डिवीजन है, पावर है डिवीजन की, डिवाइड होते हैं और अकॉर्डिंग टू द लोकेशन और अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन द मेरिस्मेटिक टिश्यू कैन बी ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी टाइप और अपाइकल लेटरल इंटरकैलरी टाइप। परमानेंट टिश्यू वो हैं जो जिनकी सेल्स में अब डिवीजन करने की क्षमता नहीं रही, दे लॉस देयर पावर ऑफ डिवीजन। परमानेंट टिश्यू कैन बी ऑफ सिंपल टाइप और complex type. In simple type of permanent tissue, all cells are of similar type, whereas in case of complex tissue, the cells are of different type. तो अब इनके परमानेंट के सिंपल के एग्जाम्पल हम लोग का पहला पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन। तो मेजर कंपोनेंट बना रहा। द सेल्स ऑफ पैरेन्काइमा जनरली आइसोडायमेट्रिक और लगभग एक ही व्यास की, एक ही साइज की होंगी। सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक।
दे में भी स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल, इलोंगेटेड। शेप अलग अलग हो सकती है, राउंड हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, इलोंगेटेड हो सकता है। वॉल्स आर थिन, वॉल्स ऑफ अ टिश्यू, ये टिश्यू की वॉल्स जो है थिन होंगी, थिन वॉल्ड होंगे। मेड अप ऑफ सेलुलोज, वॉल किसकी बनी है? सेलुलोज की बनी है। दे में भी आइदर भी क्लोजली पैक्ड और हैव स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस, या तो उनमें बिल्कुल क्लोजली पैक्ड हैं या बिल्कुल थोड़ा सा इंटरसेलुलर स्पेसेस है, बहुत छोटी मात्रा में इंटरसेलुलर स्पेसेस देखने को मिल सकते हैं। द पैरेन्काइमा परफॉर्म्स वेरियस फंक्शन सच एज फोटोसिंथेसिस, क्लोरेन्काइमा, स्टोरेज, large vacuolized cells present in opentia potato modified for storage, secretion, specialized cells producing nectar, oil, etc. तो ये जो आपका ब्रैकेट में लिख रखा है, ये आपका एक्स्ट्रा मटेरियल मैंने डाल रखा है। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, उसने बोला कि ये फोटोसिंथेसिस के लिए मॉडिफाई हो सकती है, तब उसको क्लोरेन्काइमा बोलेंगे। स्टोरेज तो ओपेंशिया पोटैटो में वैक्यूलाइज सेल्स मिल रही हैं जो स्टोरेज का काम करती हैं, आपकी एनसीईआरटी में ये लाइनें नहीं लिखी हैं। एंड सिक्रीशन, वहाँ पे उसने खाली मेंशन कर दिया कि ये काम ये कर सकते हैं, तो इससे पूछा नहीं जाएगा। फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं, सिक्रीशन कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, सिक्रीशन में पैरेन्काइमा का रोल है। ठीक है जी, ये पैरेन्काइमा सेल्स हैं। चलिए आगे चलो। कोलेनकाइमा पे ये अगला हमारा परमानेंट टिश्यू, सिंपल टिश्यू का टाइप कोलेनकाइमा। अकर्स इन लेयर बिलो द एपिडर्मिस इन डाइकॉट प्लांट। डाइकॉट प्लांट में आपको मिलेगा कोलेनकाइमा और बिलो द एपिडर्मिस मिलेगा, और ये लेयर में होगा। इट इज़ फाउंड आइदर एज अ होमोजीनस लेयर और इन पैचेज, या तो एक सतत उसकी लेयर है या पैचेज में। कंसिस्ट ऑफ सेल्स विच आर मच थिकन एट द कॉर्नर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। और ये इस तरह की सेल्स से बना हुआ है जिनके कॉर्नर्स बहुत ज़्यादा थिकेंड है। तो सेल्स के कॉर्नर थिकेंड हो गए ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। क्लोरेन्काइमा सेल्स में भी ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल, इसमें भी आपको अलग अलग शेप की सेल्स मिल सकती है। मोनोकॉट में नहीं होता, डाइकॉट में मिलेगा, और डाइकॉट में भी एरियल पार्ट्स में मिलेगा। एरियल पार्ट्स का मतलब है आपको स्टेम में मिलेगा और लीफ में मिलेगा। तो स्टेम और लीफ में एरियल पार्ट हो जो अबव द ग्राउंड लेवल हो। तो बिलो द ग्राउंड लेवल आपकी रूट है, रूट में आपके डाइकॉट की रूट में नहीं होगा, डाइकॉट प्लांट्स में होगा, स्टेम में और लीफ में होगा कोलेनकाइमा। काम क्या कर रहा है? मैकेनिकल सपोर्ट कर रहा है। वहाँ पे जैसे कि आपने देखा था फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, सिक्रीशन, यहाँ पे इसका काम क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट। दिस सेल्स एसिमिलेट फूड व्हेन दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। फूड को बना सकते हैं अगर उनमें क्लोरोप्लास्ट है, इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होंगे, और मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे हैं ग्रोइंग पार्ट्स को। जो प्लांट पार्ट ग्रो कर रहा है उसको ये मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, सच एज यंग स्टम, जैसे कि यंग स्टम हो और पिट्यूल ऑफ लीफ हो तो उसको सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। अब हम लोग आते हैं तीसरे परमानेंट टिश्यू पे, स्क्लेरेन्काइमा पे। तो दो हम लोगों ने पढ़ लिए, पैरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा। पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने लगे स्क्लेरेन्काइमा। तो हम लोगों ने पढ़ा पैरेन्काइमा को, हम लोगों ने पढ़ा कोलेनकाइमा को। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अभी मैंने क्लोरेन लिख दिया था, कोलेन, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, स्क्लेरेन्काइमा। कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल्स विथ थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल। तो ये कैसा है? लॉन्ग नैरो सेल्स से बना हुआ है। कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल्स विथ थिक एंड लिग्निफाइड सेल्स। लिग्निफाइड है सेल्स, यहाँ लिग्निन डिपोजिशन मिल रहा, जबकि आपके पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में लिग्निन डिपोजिशन नहीं था, यहाँ पे लिग्निन डिपोजिशन मिल रहा। हैविंग फ्यू और न्यूमरस पिट, या तो उसमें कुछ एक पिट होंगे या न्यूमरस पिट होंगे। दे आर यूजली डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट। This tissue is made up of dead cells without protoplasm. So protoplasm is the characteristic feature of life. On the basis of variation in form, structure, origin and development, sclerenchyma may be either fiber or sclerid.
ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म, स्ट्रक्चर, ओरिजिन, on the basis of variation in form, variation in structure, variation in development, sclerenchyma may be of either fiber type or sclerid. The fibers are thick-walled. Fibers are thick-walled, elongated, pointed cells. As you can see in the diagram, fibers are elongated, pointed cells. Generally occurs in group. Occurring in group in various part of the plant. The sclerids are spherical. However, sclerids are spherical in shape. The fibers are pointed, elongated cells. Sclerids are spherical, oval or cylindrical, having highly thickened dead cells with narrow cavities. The cavity is very much narrow. These are commonly found in the fruit wall of nuts. In the fruit wall of nuts, the sclerids are present. Pulp of fruits like guava, apple, pear, sapota. Pulp of guava, अमरूद, एप्पल, सेब, पियर, नाशपाती, सपोटा, चीकू. सीड कोट्स ऑफ लेग्यूम, लेगुमिनस प्लांट के सीड कोट में आपको मिल सकता है. एंड लीव्स ऑफ टी, और लीव्स ऑफ टी में टी की लीव्स में मिल रहा. क्या चीज़? स्क्लेरिड्स. स्क्लेरेंकाइमा प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट. इसका काम क्या है? इसका काम भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है स्टेम को. तो ये हो गया आपके सिंपल टिश्यू के बारे में बातें. सिंपल टिश्यू जिसमें सभी सेल्स एक तरह की हैं, और सिंपल टिश्यू 3 तरह के हम लोगों ने देखे, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. अब हम लोग आते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू पे. तो परमानेंट टिश्यूज हम लोग पढ़ रहे हैं. मेरिस्मेटिक टिश्यू पढ़े और परमानेंट टिश्यू. मेरिस्मेटिक टिश्यू में आपने पढ़ा अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, अपाइकल, लेटरल, इंटरकैलरी, एंड अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन, प्राइमरी और सेकेंडरी. उसके बाद हम लोगों ने परमानेंट टिश्यू को पढ़ा. परमानेंट टिश्यू जिनमें अब डिवीजन नहीं, पावर नहीं है डिवाइड होने की. और परमानेंट टिश्यू हमारे कितनी तरह के? 2, सिंपल और कॉम्प्लेक्स. सिंपल टिश्यू वो जिनमें सभी सेल्स एक प्रकार की हैं, जैसे कि पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा. और कॉम्प्लेक्स टिश्यू वो जिसमें सेल्स मोर देन 1 टाइप की हैं. अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू. ठीक है जी, चलिए कॉम्प्लेक्स टिश्यू पे आइए. द कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स एंड दिस वर्क टुगेदर एज अ यूनिट. एक से ज़्यादा तरह की सेल्स हैं और यूनिट की तरह काम कर रही हैं. जाइलम एंड फ्लोएम कॉन्स्टिट्यूट कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट. तो अगर प्लांट में आपसे पूछा जाए व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, आंसर शुड बी जाइलम एंड फ्लोएम. Xylem function as a conducting tissue for water and minerals from roots to the stem and leaves. Xylem का काम क्या? पानी का संवहन करना, पानी को संवहन, उसको ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह. तो वाटर का एंड मिनरल्स का जो रूट्स अब्जॉर्व कर रही है फ्रॉम सॉइल, Xylem is responsible for the conduction of water and minerals from roots to the other part of the body, other part of the plant body. So other part of the plant body, that means stem and leaves. So xylem functions as a conducting tissue for water and minerals from roots to stem and leaf. It also provide mechanical strength to the plant parts. It is composed of 4 different kind of elements. So क्योंकि complex tissue है तो एक से ज़्यादा तरह के कंपोनेंट से मिलके बना होगा. Namely trachid vessels, xylem fiber and xylem parenchyma. Trachid vessels, xylem parenchyma, xylem fiber. Gymnosperms lack vessels in their xylem. Gymnosperms lack vessels in their xylem. So आप देखेंगे कि भाई हमारे वो प्लांट जिनमें कि आपको वेस्कुलर टिश्यू मिल रहा है, वेस्कुलर प्लांट्स, वो टेरिडोफाइट से आपको वेस्कुलर टिश्यू मिलने लगेंगे. टेरिडोफाइट से. तो हमारे एल्गा में वेस्कुलर टिश्यू नहीं है. ब्रायोफाइट्स में वेस्कुलर टिश्यू नहीं है. टेरिडोफाइट से वेस्कुलर टिश्यू अस्तित्व में आए. टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में आपको मिल रहे हैं वेस्कुलर टिश्यू. ठीक है जी. इनमें जिम्नोस्पर्म में वो कह रहा वेसल्स नहीं होती. जिम्नोस्पर्म्स लैक वेसल्स इन देयर जाइलम. ट्रैकिड्स आर इलोंगेटेड. अब हम लोग एक एक करके पहले ट्रैकिड पढ़ेंगे,
फिर वेसल्स पढ़ेंगे, फिर जाइलम पैरेन्काइमा, फिर जाइलम फाइबर। ट्रैकिड्स आर इलोंगेटेड ट्यूब लाइक, इलोंगेटेड है, लंबी है, ट्यूब लाइक है सेल विथ थिक एंड लिग्निफाइड वॉल, जिसमें लिग्निन डिपोजिशन होने की वजह से वॉल जो है थिक हो गई है, लिग्निफाइड हो गई है, थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स एंड टेपरिंग एंड, और इनके एंड जो है वो टेपर्ड है, एंड टेपर्ड है, टेपरिंग एंड। दीज आर डेड, these cells are dead and without protoplasm, protoplasm नहीं है। the inner wall of cell walls have thickening due to the deposition of lignin and this thickening vary in form. in flowering plant tracheids and vessels are the main water transporting animals. फ्लावरिंग प्लांट में ट्रैकिड और वेसल वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। वेसल पे आ जाइए। वेसल इज़ अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। एक आपका वेसल क्या है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल बेलनाकार लंबी ट्यूब लाइक एक नलीनुमा रचना है। मेड अप ऑफ मैनी सेल्स कॉल्ड वेसल मेंबर्स। एक वेसल कई सारी सेल्स से मिलके बनी है जिसको हम लोग वेसल मेंबर्स बोल रहे हैं। ईच विद डिग्निफाइड वॉल, इनमें भी लिग्निन डिपोजिशन है ना, लार्ज सेंट्रल कैविटी और बीच में एक लार्ज सेंट्रल कैविटी या ल्यूमेन होती है। द वेसल सेल्स आर आल्सो डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। वेसल में भी प्रोटोप्लाज्म नहीं है, ट्रैकिड में भी नहीं है। वेसल मेंबर्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल। और वेसल मेंबर्स, कई सारे वेसल मेंबर जुड़ के एक वेसल बना रहे हैं। ये वेसल मेंबर एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे आप ट्रेन में बैठ जाते हो शताब्दी में और उनकी जो कूपे बोगी होती इंटरकनेक्टेड होती, वैसे ही ये वेसल मेंबर्स इंटरकनेक्टेड है थ्रू परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल्स। क्योंकि उनकी कॉमन वॉल जो है, कॉमन वॉल, आप इस रूम में बैठे पढ़ रहे हो, मेरा ये लेक्चर देख रहे हो, और बगल वाले रूम में बैठा आपका भाई क्या खेल रहा है, पबजी। लेकिन अगर आपके रूम में विंडो हो वेंटिलेशन का या एक गेट हो तो कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड है ना। द प्रेजेंस ऑफ वेसल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। वेसल्स का मिलना एंजियोस्पर्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में तो है ही नहीं। वेसल मेंबर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल, और वेसल के मेंबर जो है वो इंटरकनेक्टेड है। अब ट्रैकिड और वेसल ये जो है ये एक्स्ट्रा है, ये आपके एनसीईआरटी के में नहीं दे रखा, लेकिन इसको क्वेश्चन तो आपको नहीं आएगा, लेकिन इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपके थोड़े ज्ञान चक्षु कपाट खोलेंगे। कपाट खोलने के लिए ये है दिमाग का। तो ट्रैकिड और वेसल का यहाँ पे कंपैरिजन। इट इज़ फॉर्म ऑफ सिंगल सेल, सिंगल सेल है, फॉर्म्ड ऑफ नंबर ऑफ सेल। वेसल इज फॉर्म्ड ऑफ अ नंबर ऑफ सेल। इट इज़ लेसर लेंथ, भाई एक ही सेल है तो उसकी लेंथ कम है। सेवरल सेंटीमीटर हो सकती है, भाई कई सारे वेसल मेंबर जुड़ के जब वेसल बना रहे हैं तो उसकी लेंथ जो है सेवरल सेंटीमीटर की हो सकती है। दीज आर कंपेरेटिवली नैरोवर, वाइडर। तो ट्रैकिड एक कहिए कि पतली ट्यूब है, ये मोटी ट्यूब है, वाइडर इन कंपैरिजन। ल्यूमन इज नैरो, इसकी जो कैविटी है ल्यूमन नैरोवर है। ल्यूमन इसकी कैविटी जो है, ल्यूमन जो है वो ब्रॉडर है, वाइड है। द वॉल इज थिकर, और इसकी ल्यूमन नैरो क्यों हो गई है, क्योंकि वॉल में ज़्यादा डिपोजिशन हो गया। वॉल इज लेस थिकन, अगर लेस थिकन है तभी तो ल्यूमन ज़्यादा चौड़ी है। तो ये उसके कंपैरिजन हो गए ट्रैकिड वेसल के। जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा पे आइए। जाइलम फाइबर है हाई थिकेंड वॉल। जाइलम फाइबर की जो वॉल है थिकेंड वॉल है एंड ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल लूमन में भी सेप्टेड और एसेप्टेड। तो हाईली थिकेंड वॉल है जाइलम फाइबर की, ऑब्लिटरेटेड है, सेंट्रल लूमन एकदम बिल्कुल ऑब्लिटरेटेड है, एंड दिस में भी सेप्टेड और एसेप्टेड। जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स आर लिविंग थिन वॉल। जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स कैसे हैं, लिविंग। तो जो 4 कंपोनेंट हैं जाइलम के, उसमें केवल एक कंपोनेंट लिविंग है, वो है जाइलम पैरेन्काइमा। रेस्ट 3 आर डेड। जाइलम फाइबर भी डेड है, ट्रैकिड भी डेड है, वेसल भी डेड है। केवल जाइलम पैरेन्काइमा इज द ओनली लिविंग वन। लिविंग एंड थिन वॉल्ड है। देयर सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। यहाँ पे लिग्निन नहीं मिल रहा, सेलुलोज की है। लिग्निन डिपोजिशन नहीं होने की वजह से पतली है। दे स्टोर फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट एंड अदर सब्सटेंसेज लाइक टैनिन। जाइलम पैरेन्काइमा का काम क्या है, फूड मटेरियल को स्टोर कर रहा, फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट और टैनिन। द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, तो स्टेम में ट्रांसवर्स कंडक्शन, ट्रांसवर्स या लॉन्जिट्यूडनल कंडक्शन कहिए कि अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर हो रहा है जाइलम ट्रैकिड और वेसल से। और रेडियल कंडक्शन किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू पैरेन्काइमेटस सेल, रे पैरेन्काइमेटस सेल, जो कि आपके रे पैरेन्काइमेटा सेल जाइलम पैरेन्काइमा के बने। प्राइमरी जाइलम इज ऑफ 2 टाइप,
प्राइमरी जाइलम वो जो प्राइमरी मेरिस्टेम से बना, प्राइमरी मेरिस्टेम वो जो एम्ब्रियोनिकल एक्सिस का मेरिस्टेम था, तो उसकी वजह से जो जाइलम बना वो प्राइमरी जाइलम है। ये दो तरह का, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स आर कॉल्ड प्रोटोजाइलम एंड द लेटर फॉर्म प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड मेटाजाइलम। तो प्राइमरी जाइलम जो बन रहा है प्राइमरी मेरिस्टेम से डिवीजन से, उसमें भी जो पहले बना वो कहला रहा है प्राइमरी जाइलम, प्रोटोजाइलम, और जो बाद में बना वो कहला रहा है मेटाजाइलम। इन स्टेम प्रोटोजाइलम लाइज टूवर्ड्स द सेंटर। स्टेम में प्रोटोजाइलम कहाँ है? टूवर्ड्स द सेंटर, towards the pith, and the metaxylem lies towards the periphery, or metaxylem is towards the periphery. This type of arrangement of primary xylem is called end-arch arrangement. इसको हम लोग end-arch arrangement बोलते हैं, important है। In roots the protoxylem lies towards periphery, और roots में इसके अपोजिट है। तो स्टेम में आपको प्रोटोजाइलम किधर मिल रहा है? प्रोटोजाइलम टूवर्ड्स द पिथ मिल रहा है, जबकि रूट में कहाँ मिल रहा है? रूट में टूवर्ड्स द पेरिफेरी मिल रहा है। Protoxylem towards the periphery and metaxylem lies towards the center. Such type of arrangement of primary xylem is called an exarch. तो exarch or endarch depending upon the position of protoxylem. ठीक, तो protoxylem, when protoxylem lies towards the periphery, that is the case of when protoxylem lies towards the periphery, you will find this type of case in roots, and this type of arrangement of xylem is called as an exarch arrangement. That is the characteristic feature of roots. In stem, protoxylem lies towards the center and the metaxylem lies towards the periphery of the plant. This type of primary xylem is called endarch. As we talked earlier, ये रिपीटिशन हो गया इस पॉइंट का, चलिए पढ़ चुके हैं हम लोग। इन रूट्स प्रोटोजाइलम, रूट्स में प्रोटोजाइलम किधर है? रूट्स में प्रोटोजाइलम टूवर्ड्स द पेरिफेरी है, मेटाजाइलम टूवर्ड्स द पिथ है। तो देखिए प्रोटोजाइलम जिसकी ल्यूमेन छोटी है और मेटाजाइलम जिसकी ल्यूमेन बड़ी है। तो प्रोटोजाइलम है टूवर्ड्स द पेरिफेरी, मेटाजाइलम है टूवर्ड्स द पिथ, जो आपको रूट्स में मिल रहा है, और इसको हम लोग एक्सार्च टाइप का अरेंजमेंट बोलते हैं। फ्लोएम पे आ जाइए। अब हम लोगों ने जाइलम को पढ़ लिया, फ्लोएम पे आते हैं। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल। फ्लोएम क्या कर रहा है? वो जाइलम हमारा वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा था, फ्लोएम फूड मटेरियल का कर रहा है, यूजली फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, लीव से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म इज कंपोज्ड ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। तो एंजियोस्पर्म में फ्लोएम के जैसे जाइलम के 4 कंपोनेंट आपको मिले, वैसे ही फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। जिम्नोस्पर्म्स, जैसे कि जिम्नोस्पर्म में वेसल नहीं थी, ऐसे ही जिम्नोस्पर्म में एल्बुमिनस सेल्स और सीव सेल्स होती हैं। सीव ट्यूब नहीं होते और कंपेनियन सेल नहीं होती। तो सीव ट्यूब नहीं है, सीव ट्यूब की जगह सीव सेल्स है, और एल्बुमिनस सेल्स हमारी कंपेनियन सेल्स नहीं है, कंपेनियन सेल्स की जगह क्या है? एल्बुमिनस सेल्स है। ठीक है जी। तो जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब नहीं है, सीव ट्यूब की जगह सीव सेल है, और कंपेनियन सेल नहीं है, कंपेनियन सेल की जगह एल्बुमिनस सेल्स है। सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अरेंज लॉन्जिट्यूडनली, जो एक के ऊपर दूसरा लॉन्जिट्यूडनली अरेंज है, and are associated with the companion cell. So sieve tube animals are sieve tube elements tube like structure है, longitudinally arranged है, और उनके साथ associated है companion cell. Their end wall are perforated in a sieve like manner. End wall जो है इनकी perforated है sieve like manner में, that's why these are called as sieve tube elements. तो जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं मिल रहा? जिम्नोस्पर्म में आपको सीव सेल्स मिल रही हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट्स या सीव ट्यूब नहीं मिल रहा। सीव ट्यूब सेवरल सीव ट्यूब एलिमेंट से जुड़ने से बनी है, और जिम्नोस्पर्म में आपको कंपेनियन सेल नहीं मिल रही। कंपेनियन सेल जो कि एसोसिएटेड होती है सीव ट्यूब के साथ एंजियोस्पर्म में, उसकी जगह एल्बुमिनस सेल्स मिल रही हैं। अब मैच्योर सीव, अब ये देखिए मैंने बोला था ना शुरू में, इस लेक्चर की शुरुआत में, कि मैंने पूरे की पूरी ये जो आपकी पीडीएफ है, लिटरेचर है, एनसीईआरटी की टाइपिंग करी है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, लेकिन कुछ उसमें डायग्राम मैंने ऐड किए हैं कि आपको क्लैरिटी आ जाए। तो इस तरह के डायग्राम आपको स्लाइड में इसीलिए मैंने ऐड किए। अब मैच्योर सीव ट्यूब
एलिमेंट पॉजेज द पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, तो यहाँ पे पेरीफेरी पे साइटोप्लाज्म है, ठीक है जी, साइटोप्लाज्म होता है। एंड अ लार्ज वैक्यूल, सेंट्रल लार्ज वैक्यूल है, खूब बड़ी वैक्यूल है, बट लैक्स अ न्यूक्लियस, लेकिन न्यूक्लियस नहीं है। हाउएवर न्यूक्लियस वॉज प्रेजेंट इन द यंग सेल, यंग सेल में होता है, लेकिन मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट में न्यूक्लियस इन्यूक्लिएटेड हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। द सेंट्रल पार्ट इज ऑक्यूपाइड बाय नेटवर्क ऑफ कैनाल विच कंटेन फाइब्रिल्स ऑफ पी प्रोटीन, और ये सेंट्रल जो पार्ट हो गया उसको ऑक्यूपाई कर लिया नेटवर्क ऑफ कैनल्स, खूब सारी नेटवर्क हैं कैनल्स की जो कंटेन कर रही हैं, जिनमें है फाइब्रिल्स ऑफ पी प्रोटीन, पी प्रोटीन होगा। द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब्स आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। अब इसमें न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन इसके फंक्शन को कोई ना कोई रेगुलेट गवर्न तो करेगा। गवर्न कौन कर रहा है? न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल, ये आपकी कंपेनियन सेल है, ठीक है जी। तो ये सीव ट्यूब एलिमेंट जिसकी ये एंड प्लेट परफोरेटेड है, ये परफोरेटेड है, तभी तो इसको सीव बोल रहे हैं, छन्नी, चाय की चलनी जैसे होती है, छन्नी कह लीजिए, चलनी कह लीजिए। तो एंड प्लेट परफोरेटेड है, एंड प्लेट परफोरेटेड है सीव, तभी उसको हम सीव प्लेट बोल रहे हैं। बीच में से न्यूक्लियस हट गया, सेंट्रल में ल्यूमेन है, और क्या है? कैनाल है, इंटरकनेक्टेड कैनाल, नेटवर्क ऑफ कैनाल, सीव ट्यूब मेंबर, न्यूक्लियस एक कंपेनियन सेल है और ये सीव ट्यूब सेल है। द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब्स आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस अब उसको कंट्रोल कर रहा है। द कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज पैरेनकाइमेटस सेल। कंपेनियन सेल कैसी हैं? कंपेनियन सेल पैरेनकाइमेटस नेचर की हैं, पैरेनकाइमा की बनी है। ये लाइन इसीलिए रेड से करिए कि आप इसको नोट कर लीजिए और अपनी एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लीजिए। विच आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द सीव ट्यूब एलिमेंट्स, और ये बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है सीव ट्यूब एलिमेंट्स से। द सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स आर कनेक्टेड बाय पिट फील्ड, ये दोनों सेल्स कनेक्टेड हैं बाय पिट फील्ड, गड्ढे से, प्रेजेंट बिटवीन देयर लॉन्जिट्यूडनल वॉल। उनकी जो लॉन्जिट्यूडनल कॉमन वॉल है, कॉमन वॉल में छेद, खिड़की बना ली आपने, उससे दोनों कनेक्टेड हैं। द कंपेनियन सेल्स हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट, कंपेनियन सेल ही रिस्पॉन्सिबल है प्रेशर ग्रेडियंट बनाने में सीव ट्यूब में। जब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे तब शुगर का ट्रांसपोर्टेशन में ये देखेंगे कि एक्टिवली अपलोड कर दी जाती है, जिसकी वजह से प्रेशर ग्रेडियंट बनता है। कंपेनियन सेल्स एंड सीव सेल्स आर सिस्टर सेल्स, ये आपकी बुक की लाइन नहीं है एनसीईआरटी की, लेकिन इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए मैंने इसको रेडिंग से लिख रखा है। कंपेनियन सेल, सीव सेल्स सिस्टर सेल है, मतलब उनकी मदर सेल प्रोजिनी है एक ही अपने एंसेस्टर की। तो कंपेनियन सेल और सीव सेल सिस्टर सेल है। अब ये वाली जो लाइनें हैं ये भी आपकी बुक की नहीं है। पी प्रोटीन के बारे में जानकारी है, पहले क्वेश्चन आता था, अब नहीं आता, ना आने की उम्मीद है, लेकिन अगर आप चाहें रिपीटर हैं तो इसको आप पॉज करके इतना सा एक एनसीईआरटी में किनारे लिख लीजिए। पी प्रोटीन का काम क्या है? वो एम सील है, पंचर रिपेयर कर रही है। व्हेन द फ्लोएम इज गेट इंजर्ड, फ्लोएम अगर इंजर्ड हो जाएगा, पी प्रोटीन्स फर्स्ट माइग्रेट नियर टू द सीव एरिया एंड देन एक्यूमुलेट देयर एज ग्रेन्यूल, तो वहाँ पे जाके ये वो उसको हील कर देगी, रिपेयर कर देगी और उसकी लीकेज बंद कर देगी। तो पी प्रोटीन फर्स्ट माइग्रेट नियर टू द सीव एरिया एंड देन एक्यूमुलेट देयर एज ग्रेन्यूल, तो उसको ये सील कर देगी। फ्लोएम पैरेन्काइमा पे आइए। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड टेपरिंग सिलेंडर सेल। फ्लोएम पैरेन्काइमा किसका बना है? इलोंगेटेड टेपरिंग सिलेंडर सेल्स का बना है, विच हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, इसमें भी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होगा। तो ये है फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये है हमारी सीव सेल, सीव प्लेट, ये है आपकी कंपेनियन सेल और ये है आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा। इलोंगेटेड टेपरिंग सिलेंडर सेल्स, डेंस साइटोप्लाज्म में, खूब सारा साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस है। द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज का बना है, एंड हैज पिट, गड्ढे हैं। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द सेल, और आपस में ये सेल्स कनेक्टेड हैं प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा। द फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड, ये भी जैसे वहाँ जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर कर रहा था फूड स्टार्च के फॉर्म में या टेनिन के फॉर्म में, तो ये भी फूड को स्टोर कर रहा, स्टोर्स फूड एंड अदर सब्सटेंसेज लाइक रेजिन, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन द मोस्ट ऑफ मोनोकॉट, मोनोकॉट में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होता, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक आपने क्या देखा? वेसल्स नहीं है जिम्नोस्पर्म में, और जिम्नोस्पर्म में आपको सीव ट्यूब्स नहीं मिल रही, सीव सेल्स मिल रही, कंपेनियन सेल्स नहीं मिल रही, एल्बुमिनस सेल्स मिल रही है, और पैरेन्काइमा में फ्लोएम पैरेन्काइमा आपको मोनोकॉट में मिल रहा है, नहीं मिल रहा, डाइकॉट में मिल रहा।
फ्लोएम फाइबर्स पे आइए। फ्लोएम फाइबर्स आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। ये है फ्लोएम फाइबर, ये है आपका फ्लोएम फाइबर। ये था आपका सीव प्लेट, सीव एरिया, कंपेनियन सेल्स। ये है आपका फ्लोएम फाइबर। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स का बना है। दे आर जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम बट आर प्रेजेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम में नहीं होगा, सेकेंडरी फ्लोएम में होगा। प्राइमरी फ्लोएम क्या? प्राइमरी फ्लोएम वो जो प्राइमरी मेरिस्मेटिक सेल के डिवीजन से बन रहा, सेकेंडरी फ्लोएम में होगा। दीज आर मच इलोंगेटेड, अनब्रांच्ड एंड हैव पॉइंटेड नीडल लाइक एपाइसिस। इलोंगेटेड है, अनब्रांच्ड है, पॉइंटेड है। द सेल वॉल ऑफ फ्लोएम फाइबर्स इज क्वाइट थिक। सेल वॉल इतनी ज़्यादा थिक है कि पूछे ही मत। एट मैच्योरिटी दिस फाइबर्स लॉस देयर प्रोटोप्लाज्म एंड बिकम डेड। मैच्योरिटी पे जब ये मैच्योर हो जाएंगे, प्रोटोप्लाज्म इनका खत्म हो जाएगा, डेड हो जाएंगे। फ्लोएम फाइबर्स ऑफ जूट, फ्लेक्स, हेम्स आर यूज्ड कमर्शियली। फ्लोएम फाइबर जूट का, फ्लेक्स का और हेम्प का कमर्शियली यूज़ किया जाता फॉर मेकिंग सैक, बोरे वगैरह बनाने के लिए। तो फ्लोएम फाइबर बोरे, रस्सी वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता। फ्लोएम फाइबर ऑफ जूट, फ्लेक्स एंड हेम्प आर यूज्ड कमर्शियली। द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ नैरो सीव ट्यूब्स रेफर्ड एज प्रोटोफ्लोएम and the later form phloem has bigger sieve tubes referred as metaploem। तो जैसे वहाँ पे आपने देखा था प्राइमरी जाइलम हमारा, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, ऐसे ही यहाँ पे प्राइमरी फ्लोएम दो तरह का है, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम। जो पहले बना उसकी सीव ट्यूब्स कैसी हैं? नैरोवर है, उसको हम प्रोटोफ्लोएम बोल रहे हैं। जो बाद में बना प्राइमरी फ्लोएम, उसकी सीव ट्यूब्स कैसी हैं? उसकी ल्यूमेन जो है ब्रॉडर है और उसको हम लोग मेटाफ्लोएम बोल रहे हैं। अब हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम। तो इस लेक्चर में इतना काफ़ी। अगले लेक्चर में हम लोग टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ आप लोग को। इसको आप रिवाइज करिए और मिलते हैं ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।